السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پریپوزیشنز کے بارے میں۔ جی ہاں، پریپوزیشن، اسے پریپوزیشن بولتے ہیں، پری پوزیشن نہیں بولتے۔ تو دوستو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ پریپوزیشن، پہلا ہمارا جو پریپوزیشن ہے وہ ہے ایٹ۔ ایٹ کسی مقررہ وقت سے پہلے ہم لگاتے ہیں یا کسی مقام سے پہلے یا کسی گاؤں کے نام سے پہلے لگاتے ہیں، یعنی کہ شہر بڑے سے نہیں، گاؤں یا قصبے سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ I get up early at 6 in the morning۔ میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا 6 in the morning۔ 8 جو ہے ٹائم سے ہم نے پہلے لگایا ہے۔ عمران met his friend at mosque۔ عمران met his friend at mosque۔ عمران اپنے دوست سے مسجد میں ملا۔ I wake up early at 5 in the morning۔ میں صبح جلدی 5 بجے جاگ جاتا ہوں۔ گیٹ اپ اور ویک اپ میں فرق دوستو یہ ہے کہ ویک اپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جاگنا اور گیٹ اپ ہوتا ہے اٹھنا۔ ویک اپ ہم وہاں اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم جاگتے ہیں، ہماری نیند کھل جاتی ہے، ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور گیٹ اپ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا ہمارا ہے ان۔ ان جو ہے حالت سکون کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ دا پرنسپل از ان ہز آفس۔ دا پرنسپل از ان ہز آفس۔ پرنسپل اپنے دفتر میں ہے۔ یو آر ان اے اسکول۔ تم اسکول میں ہو۔ آئی ایم سلیپنگ ان مائی روم۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں۔ ان جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بڑے قسموں کے ساتھ مہینوں، سالوں اور موسموں کے ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سلمان لیوز ان جرمنی۔ سلمان لیوز ان جرمنی۔ سلمان جرمنی میں رہتا ہے۔ مائی برادر از ان لاہور۔ مائی برادر از ان لاہور۔ میرا بھائی پشاور میں ہے۔ مائی برادر از ان لاہور۔ میرا بھائی لاہور میں ہے۔ ہی ول گو ٹو لاہور ان جنوری۔ ہی ول گو ٹو لاہور ان جنوری۔ وہ لاہور جنوری میں جائے گا۔ تیسرا ہے انٹو۔ انٹو جو ہے یہ حرکت کو ظاہر کرتا ہے، حالت حرکت کو، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ لیٹس گو انٹو دا گارڈن۔ لیٹس گو انٹو دا گارڈن۔ چلیں باغ میں چلتے ہیں۔ لیٹس گو انٹو دا روم۔ لیٹس گو انٹو دا روم۔ چلیں کمرے میں چلتے ہیں۔ لیٹس گو انٹو دا کلاس۔ چلیں کلاس میں چلتے ہیں۔ چوتھا ہے بٹوین۔ بٹوین دو چیزوں یا انسانوں کے درمیان میں جب کوئی چیز ہوتی ہے یا انسان ہوتا ہے تو وہاں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف دو سے زیادہ کے لیے نہیں، دو کے درمیان میں۔ علی واز سٹنگ بٹوین کامران اینڈ عمران۔ علی واز سٹنگ بٹوین کامران اینڈ عمران۔ علی کامران اور عمران کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ یو آر سلیپنگ بٹوین علی اینڈ کامران۔ یو آر سلیپنگ بٹوین علی اینڈ کامران۔ تم علی اور کامران کے درمیان میں سو رہے تھے۔ پانچواں ہے امنگ۔ امنگ دوستو دو سے زیادہ جب چیزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کوئی چیز یا انسان ہوتا ہے، یا دو سے زیادہ انسانوں کے درمیان میں یا جانوروں کے درمیان میں، تو وہاں ہم استعمال کرتے ہیں امنگ، جیسا کہ فادر ڈیوائڈیڈ ہز پراپرٹی امنگ ہز سنس۔ فادر ڈیوائڈیڈ ہز پراپرٹی امنگ ہز سنس۔ باپ نے اپنے بیٹوں کے درمیان میں جائیداد کو تقسیم کیا۔ چھٹا جو ہے فور ہے۔ فور جو ہے ہم کسی مقررہ مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں، I have been calling you for 2 hours۔ I have been calling you for 2 hours۔ میں تمہیں 2 گھنٹوں سے کال کر رہا ہوں۔ The pen is used for writing۔ The pen is used for writing۔
कलम को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। सातवां जो है हमारा है सिंस। सिंस जो है मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसा कि अली हैज़ बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अली हैज़ बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अली सुबह से मैदान में खेल रहा है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस नून। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस नून। वह दोपहर से पढ़ रही है। यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से सो रहे हो। आठवां है आफ्टर। आफ्टर जो है वक्त की तरफ इशारा करता है, और जैसा कि द कैट रेन आफ्टर द माउस। द कैट रेन आफ्टर द माउस। आफ्टर के जो लफ्ज़ी माने हैं वो है पीछे। द कैट रेन आफ्टर द माउस। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। योर टर्न विल बी आफ्टर मी। योर टर्न विल बी आफ्टर मी। तुम्हारी बारी मेरे बाद में आएगी। तुम्हारी बारी मेरे बाद में आएगी। आफ्टर जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, या हमारा कोई मेहमान आता है या कोई दोस्त होता है या हमसे बड़ा होता है, तो हम कहते हैं पहले आप शुरू करें। तो उस जगह हम कहेंगे आफ्टर यू। आफ्टर यू, पहले आप, यानी बाद में मैं। या पोलाइटली तौर पर जो है हम किसी जगह से गुज़र रहे होते हैं और रास्ता जो है छोटा सा होता है या कोई छोटा सा दरवाज़ा होता है, तो हम एहतरामन वहाँ रुक जाते हैं और गुज़रने वालों को कहते हैं पहले आप गुज़र जाएं, पहले आप। तो वहाँ हम कहेंगे आफ्टर यू। नामा जो है वो है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब भी यही होता है पीछे, लेकिन ये बिहाइंड जो है ये जगह की तरफ इशारा करता है, जैसा कि ही सेड बिहाइंड द वॉल। ही सेड बिहाइंड द वॉल। वो दीवार के पीछे बैठा। यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। तुम दरवाजे के पीछे खड़े हुए थे। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्कूल। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्कूल। मैं स्कूल के पीछे खड़ा हुआ था। 10वां जो है ओन है। ओन जो है दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, जैसा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज़ पर है। द बर्ड इज़ ऑन द रूफ। द बर्ड इज़ ऑन द रूफ। परिंदा छत पर है। 11वां है ओवर। ओवर जो है इसका मतलब भी वही है ऊपर, लेकिन ओवर और ओन में दोस्तों फ़र्क ये होता है कि ओन हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है और उसके साथ चिपकी हुई होती है। जैसा कि बुक है वो टेबल पर जो हम रखते हैं, या मोबाइल है तो वो चिपका हुआ होता है, ना कि वो टेबल से ऊपर उठा हुआ होता है। तो ओवर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर तो होती है लेकिन उससे फासले पर होती है, उठी हुई होती है, उसके साथ चिपकी हुई नहीं होती, उसके साथ लगी हुई नहीं होती। तो जैसा कि द कैट जम्प्स ओवर द वॉल। द कैट जम्प्स ओवर द वॉल। बिल्ली दीवार के ऊपर से जंप लगाती है। बिल्ली जब जंप लगाती है तो ज़ाहिर सी बात है दीवार के ऊपर से ही जाती है, लगती नहीं है दीवार के ऊपर। द प्लेन फ्लाइज ओवर द अर्थ। द प्लेन फ्लाइज ओवर द अर्थ। जहाज़ ज़मीन से ऊपर उड़ता है। 12वां है ऑफ। ओ एफ ऑफ। इसका मतलब होता है का, की, के। ये जो है इस्तेमाल हम करते हैं ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए कि जब किसी चीज़ का ताल्लुक़, ये ऑफ जो है किसी चीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, जैसा कि द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर। द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर। किताब कागज़ की बनी हुई है। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये अंगूठी सोने की बनी हुई है। 13वां जो है ऑफ है, ये ओ डबल एफ ऑफ। ओ एफ एफ ऑफ। ये जो है फासला या किसी चीज़ से दूरी, कत्ता इख्तितामी की वजाहत करता है, जैसा कि असलम स्विच्ड ऑफ द फैन। असलम स्विच्ड ऑफ द फैन। असलम ने पंखा बंद कर दिया। यू स्विच्ड
ऑफ द बल्ब, यू स्विच ऑफ द बल्ब, तुमने बल्ब बंद कर दिया। और ये हम इस्तेमाल करते हैं गेट ऑफ माई बाइक, गेट ऑफ माई बाइक, मेरी बाइक से उतर जाओ। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ। अगर हमें कहना हो कि बस में चढ़ जाओ या बाइक पर चढ़ जाओ, फिर हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे गेट ऑन द बस। गेट वो है अप, अप का मतलब भी यही होता है ऊपर, लेकिन ये अप जो है ये ऊंचाई की वजाहत करता है, किसी ऊंची चीज़ की वजाहत करता है। जैसा कि ही क्लिम्स अप द हिल, ही क्लिम्स अप द हिल, वो पहाड़ी पर चढ़ता है। चाइल्ड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द चाइल्ड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चा सुबह सवेरे उठता है। ये हमारा है टू। टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब दो वर्ब को आपस में जोड़ना होता है, दो वर्ब के दरमियान में हम टू को लगा देते हैं। जैसा कि दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। व्हाट इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। विद है, विद जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। जैसा कि गॉड इज़ विद अस, गॉड इज़ विद अस, खुदा हमारे साथ है। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, खुदा हमेशा मेरे साथ है। आई विल गो टू लाहौर विद यू, मैं लाहौर आपके साथ जाऊँगा। ही कट्स द मेलन विद नाइफ, ही कट्स द मेलन विद नाइफ, वो चाकू से खरबूजा काटता है। बाय, बाय का मतलब होता है के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए। जैसा कि ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल जाता है बस के ज़रिए। आई विल गो टू लाहौर बाय ट्रेन, आई विल गो टू लाहौर बाय ट्रेन, मैं लाहौर जाऊँगा ट्रेन के ज़रिए। ही विल गो टू कराची बाय एरोप्लेन, ही विल गो टू कराची बाय एरोप्लेन, वो कराची जहाज़ के ज़रिए जाएगा। 18 नंबर जो है वहाँ ये है अगेंस्ट, और अगेंस्ट जो है इस्तेमाल अमूमन किसी चीज़ के रद्द-ए-अमल या तफसील के लिए आता है। इसका इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के रद्द-ए-अमल या तफसील के लिए। जैसा कि सलमान इज़ प्लेइंग अगेंस्ट आवर टीम, सलमान इज़ प्लेइंग अगेंस्ट आवर टीम, सलमान हमारी टीम के मुखालिफ खेल रहा है, हमारी टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा है, यानी कि मुकाबले में खेल रहा है। ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो आई नो वेल अबाउट योर फैमिली, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। आई डोंट नो द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, आई डोंट नो द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, मैं उसके दोस्त का नाम नहीं जानता। आई नो वेरी वेल अबाउट इट, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। फ्रॉम, फ्रॉम जो है दोस्तों हम इसका मतलब होता है से। जैसा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो। वेयर डू यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई कम फ्रॉम इंग्लैंड, जैसा कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, इस तरह से। 21 है डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। प्लीज़ सिट डाउन ऑन द चेयर, प्लीज़ सिट डाउन ऑन द चेयर, बराए मेहरबानी कुर्सी पर बैठ जाएं। प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी नीचे बैठ जाएं। प्लीज़ गो डाउन, बराए मेहरबानी नीचे चले जाएं। है अबाव, अबाव का मतलब ऊपर है। जैसा कि नो वन इज़ अबाव लॉ, नो वन इज़ अबाव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। दोस्तों द गिलास इज़ ऑन द टेबल, गिलास टेबल पर है। ऑन है यहाँ प्रीपोजिशन। इमरान कम्स इनटू द रूम, इमरान कम्स इनटू द रूम, इमरान कमरे में आता है। इनटू है प्रीपोजिशन जो कम्स और रूम को जोड़ रहा है। यू आर स्टैंडिंग इन द रूम, यू आर स्टैंडिंग इन द रूम, तुम कमरे में
खड़े हुए थे। यहाँ इन है प्रेपोजिशन। दे आर कमिंग फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से आ रहे हैं। दे आर को हम शॉर्ट में दे आर बोलते हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से आ रहे हैं। आई लिव इन कराची, आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। यहाँ इन है प्रीपोजिशन। इट्स टाइम फॉर रेस्ट, इट्स टाइम फॉर रेस्ट, ये वक्त सुकून का है। इट इज़ को हम शॉर्ट में इट्स बोलते हैं। अबाइड बाय योर प्रॉमिस, अबाइड बाय योर प्रॉमिस, अपने वादे पर कायम रहो। He'll come here in 2 days, वो 2 दिनों में यहाँ आएगा। He will को हम शॉर्ट में he'll पढ़ते हैं। She was married to कामरान, she was married to कामरान, उसने कामरान से शादी की थी। यहाँ टू है प्रेपोजिशन। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विद यू, आई एम को हम शॉर्ट में आम पढ़ते हैं। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्से हूँ। या विद ए प्रीपोजिशन। बिलोंग टू कराची, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। यू बिलोंग टू लाहौर, तुम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हो। काइंडली वेट फॉर मी, बराए मेहरबानी मेरे लिए इंतज़ार करें। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, हमेशा खुदा पर यकीन रखें। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, हमेशा खुदा पर यकीन रखें। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशंस के सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर